Good morning, students. Students, in today's science class, we will discuss the weekly test I gave all of you on the last Saturday. In this class, we will also see how to use the notes provided to you to do the test. Yeah, जो मैंने आपको notes दिए थे, वो notes में ही कैसे हमारे पास सारे answers थे. अगर वो notes हमने ढंग से समझे होते, तो हम ये टेस्ट में 20 में से 20 ला सकते थे. मैं आपको आज यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वो नोट्स में से कैसे पढ़ सकते हैं कि हमारे टेस्ट में फुल मार्क्स आए एंड हमें सब कुछ ढंग से समझ भी आए. Alright, so let's begin. So in the name column, you will type your own name. Since my name is Mansi Singh, I'm writing my name, but if say someone else is writing, for example, if Ria is writing this test, so she will write her own name, Ria, here. Okay, let's go next. Can you see diversity in the plants in the below image? क्या आप diversity देख पा रहे हैं plants में in the below image? तो ये question answer करने के लिए हमें diversity का meaning पता होना चाहिए. Yes, we should be aware of the meaning of diversity. Alright, so let me open the notes for you. So these were the notes that I shared. So here we have the meaning of diversity. Diversity means that our world is full of creatures which look different from each other and have different functions. So I can see definition of diversity saying creatures या फिर organisms which look different from each other. Yes, जो organisms एक दूसरे से different दिखते हैं. Some animals are big, some are small, some plants are tall, others are short. Yes, so हम differences देख रहे हैं. So अगर इस picture में हमें different types के plants दिख रहे हैं, then diversity है. So आप देख सकते हैं, you can all see that there are different types of plants. Yes, all the plants are different. That means there is diversity here. So the answer to this question will be yes. Can you see diversity? Yes, I can see, because from this I understood that diversity means different from each other. Yeah, so here I can see all are different from each other. Okay, let's go forward. What is evolution? Now my second question is, what is evolution? So class, evolution I taught you. So what did we think evolution was? Let's see if I can get the answer. So evolution, if you remember in one of the videos I spoke about evolution being slow changes that happen in an organism to help them survive their surrounding. Yes, so evolution क्या होता है, मैंने example भी दिया था कि monkey like animal से humans बनना, it happened in steps. Yes, so वो जो slow changes होते हैं organism में उसको evolution बोलते हैं. So let's see which option. Evolution is when there are different types of animals and plants. No, different types is diversity. Evolution is cactus plant living in desert. नहीं, evolution cactus plant living in desert is not evolution. Evolution क्या है कि कोई plant cactus plant में change हो गया, क्या हम उसकी बात कर रहे हैं कि कोई plant change हुआ है? यहाँ पे हम change की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये option सही नहीं है. Evolution मतलब होता है change जो हो रहा हो, है ना? So this is not correct. None of the above मतलब ऊपर में से कोई नहीं. Okay, ये वाला option देख लेते हैं. Evolution is slow changes that happen in organism to help them survive their surroundings. Yes, this is the correct option. Yes, यही evolution होता है ना. Evolution क्या होता है? Slow changes, धीरे changes जो organism होते हैं जिसकी help से वो अपने surroundings में survive कर पाता है, रह पाता है. Correct? Yes. All right. Let's go forward. Select the correct example of adaptability. All right. Adaptability, let's see. Adaptability मतलब मुझे पता होना चाहिए अब. So let me go and I will, let's see यहाँ पे adaptability के बारे में लिखा है. Yes, here. Slow changes occur in the body parts of organism as well as in their behavior, which helps them adjust to their surroundings. These changes are called adaptation. Okay, so adaptation क्या है? जो changes होते हैं एक organism जिसकी वजह से वो अपनी surrounding में रह सकता है. Yeah.
So cactus in desert definitely adaptation है. Cactus की we know these thorns are there, this fleshy stem. So definitely ये सही example है. Deodar tree in mountain regions. So आप देख सकते हो adaptation in desert plant का एक example cactus था. Deodar tree का example है snowy region. So यहाँ पे क्या है माउंटेन्स में स्नो होती है तो डिओडा ट्री ये भी करेक्ट है. वीनस फ्लाइट ट्रैप ईटिंग इंसेक्ट्स ये भी हमने देखा था. यहाँ पे हमने वीनस फ्लाइट ट्रैप के बारे में सुना था. वी टोल्ड यू कि दिस प्लांट ईट्स इंसेक्ट. यस, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है ना. सो नोट्स में देख के मेरे को पता है ये तीनों अडेप्टेशन की, ये तीनों प्लांट्स ने अडेप्ट कर रखा है सो दैट दे कैन लिव. कैक्टस ने डेजर्ट के हिसाब से, डिओडा ट्री ने माउंटेन रीजन के हिसाब से और वीनस फ्लाइट ट्रैप ने इंसेक्ट्स खाने के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया है, अपने आप को चेंज किया है. सो ऑल आर करेक्ट. सो माय फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स आर ऑफ अडेप्टेबिलिटी. यस, ऊपर के सारे ऑप्शंस अडेप्टेबिलिटी के एग्जांपल है तो ये करेक्ट है. ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ओके, सो अडेप्टेशन का इंपॉर्टेंस है इट helps them adjust to their surroundings and survive. Yes, adaptation helps them to adjust, अपने surrounding के साथ adjust होने में और survive करने में help करता है. So let me write adaptation help organisms. Okay, this spelling is wrong. Organisms survive in their surroundings. Yes, surroundings में survive करने के लिए adaptation help करता है. Okay, next question. Do you think this polar bear has adapted? क्या ये polar bear लग रहा है adapt किया है? हाँ, definitely किया है, क्योंकि एक तो नॉर्मल यू नो बेयर कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ये व्हाइट कलर का है जिससे कि ये बर्फ के साथ मिक्स हो जाए और बर्फ के साथ मिक्स होगा तो इसको आसानी से कोई देख नहीं पाएगा. यस, एंड ऑल्सो इसका जो फर है और स्किन है बहुत थिक है. थिक होने से क्या फर्क पड़ता है, मोटी होने से क्या फर्क पड़ता है, इसको आसानी से ठंड नहीं लगेगी. So do you think the above polar bear has adapted? Yes. How has the polar bear adapted? What are the few adaptations that you can see? Polar bear ने कैसे adapt किया है और आपको कौन से few adaptation दिख रहे हैं? White color fur, ये एक हो गया है ना. ठीक है, और क्या? Thick skin. These are the two things. Okay, let's move forward. Which of the following adaptation helps lotus plant from not rotting in water? Which of the following adaptation, इनमें से कौन सा adaptation help करता है lotus plant को पानी में rot नहीं होने देता, पानी में सड़ने नहीं देता? So let's go back to our notes and see. So lotus plant की बात हो रही है, मुझे पता है lotus plant पानी में रहता है तो मेरे को aquatic region में देखना पड़ेगा. Aquatic मतलब water वाला region. So here look, lotus का example है. It prevents its stem and leaves from rotting in water. पानी में उसको सड़ने से बचाता है. क्या बचाता है? Waxy covering on leaf and stem. जो waxy covering होती है जिसकी वजह से पानी उसको सड़ाता नहीं है. So मेरा आंसर क्या हुआ? Waxy covering. Yes, so this is the answer. जो लीव्स और स्टेम के ऊपर वैक्स जैसा सब्सटेंस लगा होता है वो उसको पानी में सड़ने से बचाता है. ये लिखा है. अडेप्टेशन क्या है? वैक्सी कवरिंग है. और इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है? प्रिवेंट्स लीव्स एंड स्टेम फ्रॉम रॉटिंग इन वाटर, पानी में सड़ने से बचाता है. ठीक है, ऑल राइट. ईल ग्रास हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशन. ईल ग्रास में कौन सा अडेप्टेशन है? तो लेट्स सी ईल ग्रास कहाँ लिखा है. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये रहा ईल ग्रास. यस, इसका अडेप्टेशन हमें ढूंढना है. अडेप्टेशन क्या है? ये रहा. अडेप्टेशन के कॉलम में जाके देखो, थिन रिबन लाइक लीव्स, ऐसा है ना, रिबन जैसी थिन थिन लीव्स है. सो लेट्स सी, थिन रिबन लाइक लीव्स, यही आंसर है. करेक्ट. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बिलो. मेरे को मैच द फॉलोइंग करना है एंड करेक्ट आंसर लिखना है. अडेप्टेशन यहाँ पे लिखा है और अडेप्टेशन का यूज क्या है इधर लिखा है. सो मैं देख सकती हूँ ये नीडल, थॉर्न्स, फ्लैशी स्टेम के अंदर, तो मेरे को समझ आ गया
पेड़ों में नीडल्स डेजर्ट एरिया में होते हैं, तो मैं डेजर्ट रीजन पे जाके अडेप्टेशन देखूं तो आई थिंक मेरे को आंसर मिल जाएगा यस। अगर यहाँ पे देखो लीव्स अडेप्टेशन है, लीव्स मॉडिफाई इनटू थॉर्न, तो इसका फंक्शन क्या है, लेस वाटर बाय इवेपोरेशन, वो कम पानी लूज करता है, सो लेस वाटर बाय इवेपोरेशन, सी ऑप्शन, सो 1 विथ सी। देन ग्रीन फ्लैशी स्टेम, तो ग्रीन फ्लैशी स्टेम का क्या यूज है, to conduct photosynthesis in absence of leaves and to store water for later use. So let's see, to conduct photosynthesis, yes, green मतलब photosynthesis, तो 2 के साथ A, अभी तक 1C 2A, तो 3 मेरा B हो गया। डीप टैप रूट्स का यूज, डीप टैप रूट्स का क्या यूज है, to penetrate deep in the soil to search for water. Yes, let's check, deep tap roots to penetrate deep in the soil to search for water. ये सही है। So मेरा क्या ऑप्शन हो गया, 1C 2A 3B। Let's see, 1C 2A 3B, ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। ऑल राइट, देखा मैंने कैसे मैच किया, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था सारे अडेप्टेशन और उनके जो फंक्शन है वो दिए हुए थे। यस, मैं समझ के भी कर सकती थी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विथस्टैंड कोल्ड पाइन ट्री हैज ए, अच्छा कोल्ड लिखा है तो मेरा आंसर कोल्ड रीजन में होएगा। सो ये डेजर्ट तो गर्मी होती है, स्नोई रीजन, तो स्नोई रीजन में कोल्ड होता है। ओके, तो क्या लिखा है, ठंड को विथस्टैंड करने के लिए, ठंड को बर्दाश्त करने के लिए पाइन ट्री के पास क्या है, कोनिकल शेप है, थिक बार्क है, कि ग्रीन फ्लैशी लीव्स है, कि टॉल ट्रीज है। लेट्स सी, ठंड को विथस्टैंड करना है, सो स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन द ट्री, नहीं, टू विथस्टैंड कोल्ड, विथस्टैंड कोल्ड के लिए क्या चीज है, थिक बार्क, तो थिक बार्क क्या हेल्प करता है, टू विथस्टैंड कोल्ड, थिक मोटी, उसका जो वुड होता है, जो स्टेम का लीफ, सारे स्टेम्स का बार्क का वो मोटा होता है, उससे ठंड आराम से विथस्टैंड कर पाता है, तो आंसर क्या हुआ, थिक बार्क। ऑल राइट, let's move forward. Why do trees need to grow tall and climbers need to have spring-like tendrils in a forest? Why do trees need to grow tall and climbers need to have spring-like tendrils in a forest? मतलब फॉरेस्ट, अभी फॉरेस्ट रीजन की बात हो रही है, तो फॉरेस्ट रीजन में ट्रीज को लंबा क्यों ग्रो होना पड़ता है और क्लाइंबर्स के पास स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स क्या होता है। अच्छा, अगर मैं सोचूं, फॉरेस्ट में बहुत सारी ट्रीज होते हैं और ट्रीज को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होता है, तो अगर वो शॉर्ट होंगे तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगा, है ना, तो आई थिंक आंसर होना चाहिए टू गेट सनलाइट। लेट्स जस्ट चेक, ओके, सो फॉरेस्ट रीजन का ये है, ट्रीज ग्रो टॉल, ट्रीज लंबे होते हैं और उसका रीजन क्या है, टू रीच सनलाइट, या, और स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स क्यों होते हैं क्लाइंबर पे, क्लाइंबर पे इसलिए होते हैं जिससे कि वो टॉल ट्रीज को क्लाइंब कर पाए टू गेट सनलाइट, सो दैट क्लाइंबर्स कैन क्लाइंब ऑन टॉल ट्रीज टू गेट सनलाइट, करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, टू गेट सनलाइट, यस। तो हम सोच सकते हैं, हमें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस है ना कि ट्रीज को सनलाइट चाहिए होता है, बहुत सारे ट्रीज है तो अगर छोटे रह जाएंगे तो शेड मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो लंबे हो जाते हैं, और क्योंकि वहां पे लंबे ट्रीज हैं तो क्लाइंब करने के लिए जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल्स चाहिए होते हैं, यस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट अडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड बाय ग्रास इन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड रीजन में ग्रास को कैसा अडेप्टेशन चाहिए, लेट्स सी, सो ये ग्रासलैंड रीजन आ गया, अडेप्टेशन रिक्वायर्ड कौन सा है, फाइब्रस रूट्स, so let's go back, fibrous roots to get water। अब देखो, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, फाइब्रस रूट्स टू गेट वाटर है ही नहीं, फाइब्रस रूट का यूज क्या है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो केयरफुल, हाँ, अब फाइब्रस रूट देख के मैं ऐसे टिक कर सकती थी, नहीं, पूरा पढ़ना है, राइट। फाइब्रस रूट टू गेट वाटर, रॉन्ग, ये वाला देखो, फाइब्रस रूट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फाइब्रस रूट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यस। जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है, ढंग से पढ़ना है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हु हैव अडेप्टेड फॉर ingestion of food are,
ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जिन्होंने फूड अपने आप को अडेप्ट किया है, किसके लिए? खाने को इंजेस्ट करने के लिए, खाने को पचाने के लिए। ऑल राइट, इंजेशन के लिए किस किसने किया है अडेप्ट? यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे है आंसर। वी हैव कस्कटा, we have Venus flytrap, pitcher plant and sundew. We have fungi. Okay, let's see. Fungi and Cascata. So Cascata and fungi. Yes, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट बाकी सब ऑप्शन देखते हैं। दियोदार एंड फर ट्री, दियोदार और फर ट्री ने अपने आप को अडेप्ट किया है, बट खाना खाने के लिए नहीं किया है, वो तो ठंड के लिए किया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वीनस फ्लाइट ट्रैप ने हाँ खाना खाने के लिए किया है, वो इंसेक्ट खाता है, बट कैक्टस ने खाना खाने के लिए नहीं किया, उसने किस लिए किया है? इसने गर्मी में रहने के लिए किया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सनड्यू, हाँ सनड्यू ने किया है करेक्ट, पर रेडवुड ट्रीज ने नहीं किया। रेडवुड ट्रीज ने, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो फॉरेस्ट में रहने के लिए किया था। रेडवुड ट्रीज ये रहे, ये बहुत लंबे होते हैं, सो दैट फॉरेस्ट में रह पाए। सो इंजेक्शन का आंसर यही है, फंजा एंड कस्कटा। बाकी सब ने डिफरेंट डिफरेंट रीजन से किया है, या ओके। लास्ट क्वेश्चन, why does Cascata have hostorial roots? Now let's look at hostorial. Okay, so here it is, hostorial roots. Hostorial मतलब होता है sucking, yes? तो क्यों होता है? To attach to trees and suck nutrients. यहाँ पे लिखा है आंसर, attach to trees and suck nutrients. Yes, so यही मेरा आंसर है. Let's see. To take nutrition from dead, no. ये रहा, to attach to trees and suck nutrients. Now all my answers are done. I will submit the test. I will click on submit. Yes, my quiz is submitted. Look, your test has been sent to Mansi Miss. तो अगर आप करते तो आपका टेस्ट मेरे पे आ जाता, सबमिट दबाते ही। अब मैं यहाँ पे अपना स्कोर भी देख सकती हूँ, व्यू स्कोर पे क्लिक करके। टोटल पॉइंट्स 12 में से 12, क्योंकि हमारे सारे आंसर सही थे। ओके, सो क्लास आपने देखा हम कैसे टेस्ट में फुल मार्क्स ला सकते हैं, जस्ट क्लास में ध्यान देके। ये जो नोट्स है इसी के मैंने आपको साइंस के वीडियोस बनाए थे, है ना? तो वो वीडियोस हम देखते, समझते और नोट्स याद करते तो हमें फुल मार्क्स आते। यस, आते। सो नेक्स्ट टाइम के लिए मेक श्योर आप अच्छे से जो मैं वीडियो भेजती हूँ वो देख रहे हैं और वो सॉल्व कर रहे हैं। यस, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आपके होमवर्क में एक ही चीज है, फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू मेक श्योर आप वापस से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है और मुझसे पूछ रहे हैं। दैट्स इट, आप रिवाइज कर सकते हैं आज। ऑल राइट क्लास, गुड लक।